Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we have completed chapter 6, the swing of our English literature book as Disaster in our last video. And today we are going to start a new chapter of our English literature book as Disaster. Students, the number of this new chapter is chapter 7. The name of this chapter 7 is A Cloud of Trust. Okay, so students, today we will read chapter 7, A Cloud of Trust in our today's class. And included this chapter 7, A Cloud of Trust, today we will read and explain summary of first, second and third stanzas, which is page number 52 of this chapter 7. And after it, we will read and note down 15 hard words of the chapter 7 in our fire English literature notebook. Okay, so all students, please use partial touch class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of first, second and third stanzas, which is page number 52 of this chapter 7. And we will also read and note down 15 hard words of this chapter 7 in our fire English literature notebook. Okay, so all students, let's see chapter 7. The name of the chapter 7 is A Cloud of Trust. Okay, means say cloud means badal, of means car, trust. Students, here the meaning of trust, that junk या dirt. Okay, it's mean कि कचरा. A cloud of trust, it's mean कचरे का बादल. Okay, कचरे का एक बादल. Students, in this chapter 7, A Cloud of Trust, we will read about environmental issues. Okay, तो environmental issues के बारे में read करेंगे इस chapter 7 में. And the name of this chapter 7 is A Cloud of Trust. It's mean कचरे का एक बादल. Okay, so students, turn your page forward. Look at this page number 52. Let's read this chapter 7, A Cloud of Trust. Read this story about Chico and the cloud of trust. Okay, read means पढ़िए. This means ये, story means कहानी, about means बारे में. Chico, students, in this story, A Cloud of Trust, Chico, it's a girl name. Okay, girl का name है. And means और, the cloud means बादल, of means car, trust means junk या dirt. It's mean कचरा. Okay, read this story about Chico and the cloud of trust. It's mean चीकू और कचरे के बादल के बारे में इस कहानी को पढ़ी. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट चीकू एंड द क्लाउड ऑफ ट्रस्ट. ओके, तो चलिए चीकू और कचरे के बादल के बारे में इस कहानी को पढ़ते हैं. ओके, लेट्स रीड दिस फर्स्ट नंबर स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर 7, अ क्लाउड ऑफ ट्रस्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर स्टैंजा इज Chiku was the unhappiest girl among her friends. Okay, she was the unhappiest girl in the world. Friends, Chiku had no friends anymore. No one wanted to play with Chiku, and because she had a cloud hanging over her head, okay, a cloud of stress. Okay, Chiku was means थी. Okay, was it's a past continuous tense helping verb in singular form. Was means थी. The unhappiest girl, it means सबसे ज़्यादा दुखी. Unhappiest means सबसे ज़्यादा दुखी. Okay, girl means लड़की. Among her friends. Okay, it's mean अपने दोस्तों में. चीकू वाज दी अनहैप्पीस्ट गर्ल अमंग हर फ्रेंड्स. इट्स मीन चीकू अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा दुखी लड़की थी. ओके, तो फ्रेंड्स, चीकू के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो अनहैप्पीस्ट गर्ल थी, सबसे ज़्यादा जो दुखी लड़की थी, वो चीकू ही थी. ओके, सी वाज द अनहैप्पीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. ओके, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, द अनहैप्पीस्ट गर्ल इट्स मीन्स सबसे ज़्यादा दुखी लड़की, इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में या विश्व में. ओके, वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया या विश्व. सी वॉज द अनहैप्पीस्ट गर्ल इन दी वर्ल्ड. ओके, इट्स मीन कि वह दुनिया की सबसे ज़्यादा दुखी लड़की थी. ओके, फ्रेंड्स, दोस्त. चीकू हैड नो फ्रेंड्स एनीमोर. ओके, चीकू हैड नो फ्रेंड्स एनीमोर. इट्स मीन कि चीकू का कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी फ्रेंड नहीं था. ओके, एंड नो वन वांटेड टू प्ले विद चीकू. ओके, नो वन इट्स मीन कोई भी. वांटेड मीन्स चाहता था. वांटेड इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वांट. वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था. टू प्ले मीन्स खेलना. विद चीकू इट्स मीन चीकू के साथ. ओके, नो वन वांटेड टू प्ले विद चीकू इट्स मीन कोई भी चीकू के साथ खेलना नहीं चाहता था. ओके, एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. बिकॉज इट मीन क्योंकि. ओके, सी हैड अ क्लाउड. इट्स मीन कि मतलब सी हैड अ क्लाउड. इट्स मीन कि उसके पास एक क्लाउड था, बादल था. हैंगिंग मीन्स टंगा हुआ. ओवर हर हेड, उसके हेड के ऊपर. हेड मीन्स सिर. ओके, बिकॉज सी हैड अ क्लाउड हैंगिंग ओवर हर हेड. इट्स मीन क्योंकि उसके सिर पर एक बादल लटका हुआ था. ओके, एंड अ क्लाउड ऑफ ट्रास. ओके, आ मीन्स क्लाउड मीन्स बादल, ऑफ मीन्स का, ट्रास मीन्स या द मीनिंग ऑफ ट्रास, दैट ट्रास मीनिंग स्टैंड्स दैट वी कैन से कि जंक या डर्ट. इट्स मीन कचरा. ओके, एंड स्टूडेंट्स, कोई भी इसके साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके सिर पे एक कचरे का बादल टंगा हुआ रहता था. अ क्लाउड ऑफ डस्ट. इट्स मीन कि एक कचरे का बादल. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. ऑरेंज पील्स एंड बिस्किट पैकेट्स, ब्रोकन टॉयज एंड pencil savings, twisted plastic bottles and colorful plastic bags, all surrounded by a swarm of buzzing flies. No one wanted to play with a girl who had a cloud of stars having over her. Okay, तो ऑरेंज पील्स. ओके, इट्स मीन कि संतरे के छिलके. ओके, पील्स मीन्स होता है छिलके. एंड मीन्स और बिस्किट पैकेट्स. ओके, जो बिस्किट के पैकेट होते हैं, राइपर होते हैं वो. ब्रोकन टॉयज, इट्स मीन टूटे हुए खिलौने. ओके, एंड पेंसिल सेविंग्स. ओके, जो पेंसिल सेविंग्स मीन्स पेंसिल के छीलन. ओके, पेंसिल को साफ करने के बाद जो सेविंग्स होती है ना, उसकी जो छीलन होती है वो.
एंड ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़े हुए प्लास्टिक बॉटल्स, इट्स मीन प्लास्टिक की बोतलें. ओके, ट्विस्टेड प्लास्टिक बॉटल्स इट्स मीन मुड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलें. एंड कलरफुल मीन्स रंग बिरंगी रंगीन प्लास्टिक बैग्स और एंड कलरफुल प्लास्टिक बैग्स इट्स मीन कि और रंगीन प्लास्टिक की थालियाँ. ओके, बैग्स मीन्स थालियाँ. ऑल सराउंडेड बाई अ स्वॉर्म ऑफ बजिंग फ्लाइज. ओके, ऑल सराउंडेड इट्स मीन कि सभी घिरी हुई थी, बाई मीन्स द्वारा, अ स्वॉर्म इट्स मीन कि एक झुंड या एक समूह. ओके, ऑफ मीन्स का, बजिंग मीन भिनभिनाती हुई. ओके, बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाना, फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. ओके, ऑल सराउंडेड बाई अ स्वॉर्म ऑफ बजिंग फ्लाइज इट्स मीन कि सभी घिरी हुई थी चारों तरफ से भिनभिनाती हुई मक्खियों के द्वारा. ओके, ऑरेंज पील्स एंड बिस्किट पैकेट्स, broken toys and pencil savings, twisted plastic bottles and colorful plastic bags all surrounded by a swarm of buzzing flies. It's mean कि संतरे के छिलके और बिस्किट के पैकेट, टूटे हुए खिलौने और पेंसिल की छीलन, मुड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलें और रंगीन प्लास्टिक की थैलियाँ सभी भिनभिनाती मक्खियों के झुंड से चारों तरफ से घिरी हुई थी. ओके, नो वन वांटेड टू प्ले विद अ गर्ल who had a cloud of grass hanging over her. Okay, no one means कोई भी, wanted means चाहता था. Okay, wanted the second form of want means चाहना, wanted means चाहता था. To play means खेलना, with means साथ में, a means एक, girl means लड़की, who means जो. Okay, had a cloud of grass hanging over her. Okay, तो नो वन वांटेड टू प्ले विद अ गर्ल हु हैड अ क्लाउड ऑफ ग्रास हैंगिंग ओवर हर. इट्स मीन कोई भी उस लड़की के साथ नहीं खेलना चाहता था जिसके ऊपर कूड़े का एक बादल लटक रहा हो. ओके, so students, let's see next. Chiku Evan had to eat her lunch alone. Okay, Chiku Evan had to eat, it's mean कि चीकू को मतलब खाना पड़ता था हर लंच. इट्स मीन लंच मीन्स जो स्टूडेंट्स हम लोग दोपहर भी खाना खाते हैं उसे बोलते हैं लंच, दोपहर का खाना. अलॉन मीन्स अकेले. चीकू एवन हैड टू ईट हर लंच अलॉन. इट्स मीन कि चीकू को अपना दोपहर का खाना भी अकेले ही खाना पड़ता था. ओके, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तो एक क्लाउड ऑफ ग्रास हैंगिंग रहता था ना, कचरे का बादल टंगा रहता था ना. ओके, चीकू नी दैट सी शुड हैव लिसन टू हर अम्मा. ओके, चीकू नी मीन्स जानती थी, नी इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ नो. नो मीन्स जाना, नी मीन्स जानती थी, दैट मीन्स की, सी मीन्स है, शुड मीन्स चाहिए, हैव लिसन इट्स मीन्स सुनना, टू हर मीन्स अपनी, अम्मा मीन्स अम्मा मम्मी. ओके, चीकू नी दैट सी शुड हैव लिसन टू हर अम्मा. इट्स मीन चीकू जानती थी कि उसे अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए थी. ओके, तो वही जानती थी कि हाँ उसे अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए थी. लेट्स सी कि इसकी जो अम्मा है, उसकी मम्मी है, वो उसे क्या कहती थी जो उसे सुनना चाहिए. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंडर्ड. अम्मा ऑलवेज टोल्ड हर नॉट टू लिटर. ओके, तो अम्मा ऑलवेज मीन्स हमेशा, टोल्ड मीन्स कहती थी, हर मीन्स उससे. ओके, नॉट टू लिटर इट्स मीन कि अम्मा उससे हमेशा कहती थी कि कूड़ा कचरा इधर ना फेंको. ओके, तो अम्मा हमेशा उसे कूड़ा कचरा ना करने के लिए कहती थी. तो चीकू क्या करती थी. अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रास ऑफ क्लाउड है ना, इट्स मीन कि अ क्लाउड ऑफ ट्रास है ना, मतलब कचरे का जो बादल उसके ऊपर कैसे हैंगिंग रहता है, कैसे टंगा रहता है. इट्स मीन कि अब ऐसा नहीं है कि सच में रियल में मतलब एक क्लाउड ऑफ ट्रास है उसके ऊपर हैंगिंग रहता है, कि सच में कचरे का बादल उसके ऊपर टंगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, हियर द मीन ऑफ अ क्लाउड ऑफ ट्रास. यहाँ कचरे का एक बादल का मीन ये है कि वो क्या करती थी चीकू, वो कुछ भी खाती थी. वो ऑरेंजेस खाए, बिस्किट्स खाए, ओके, एप्पल्स खाए, कुछ भी खाए, टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट्स, कुछ भी खाती थी वो. तो वो उसके राइपर को, उसके छिलके को, उसके पील्स को इधर उधर फेंक देती थी, अपने आसपास डाल लेती थी. ओके, इससे डस्टबिन भी नहीं फेंकने जाती थी, जहाँ बैठी होती थी वहीं डाल देती थी. बहुत लेजी थी. और वो क्या करती थी, वो यहाँ तक कि पेंसिल तक जो शार्प कर देती थी, जो पेंसिल की जो सेविंग्स होती थी, छिलके होते थे, वो भी इधर उधर डाल देती थी. तो ऐसे क्या होता था कि जो हाँ वो बैठ जाती थी ना, तो उसके आसपास बहुत सारा मतलब कूड़ा कचरा हो जाता था, बहुत ज़्यादा उसके पास त्रास हो जाता था. तो इसीलिए कहा जाता है, इस स्टोरी में इसीलिए कहा गया है कि अ क्लाउड ऑफ ग्रास हैंगिंग ओवर हर हेड, कि उसके सिर के ऊपर कचरे का एक बादल टंगा हुआ रहता था. ओके, तो उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती थी कि कूड़े कचरे को इधर मत फेंको. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. थ्रू द एंड अम्मा ऑलवेज टोल्ड हर नॉट टू लिटर. उसकी जो मम्मी थी हमेशा उसे मना करती थी कि कूड़े कचरे को इधर मत फेंको. ओके, डू नॉट थ्रो द बनाना पील और द रोड. ओके, डू नॉट थ्रो इट्स मीन कि मत फेंको. द बनाना पील्स, हियर द मीन ऑफ द बनाना पील इट्स मीन केले के छिलका. ओके, पील मीन्स छिलका होता है, ऑन द रोड इट्स मीन सड़क पर, रोड मीन्स होता है सड़क. डू नॉट थ्रो दी बनाना पील ऑन दी रोड इट्स मीन कि केले के छिलके को सड़क पर ना फेंको. उसकी मम्मी हमेशा उसे समझाया करती कि कूड़े करकट को इधर मत फेंको. ओके, बनाना के छिलके को इधर उधर मत फेंको. तो बट चीकू नेवर लिसन. ओके, बट मीन्स लेकिन चीकू नेवर मीन्स कभी भी नहीं, लिसन मीन्स सुनती थी. लिसन इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ लिसन. लिसन मीन्स सुनना, लिसन मीन्स सुनती थी. बट चीकू नेवर लिसन, लेकिन चीकू कभी भी उनकी बात नहीं सुनती थी. सी ओनली लॉफ्ट एंड केप्ट लिटरिंग. ओके, तो सी मीन्स वह, ओनली मीन्स केवल, लॉफ्ट मीन्स हंसती थी. लॉफ्ट इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ लॉफ्ट. लॉफ्ट मीन्स हंसना, लॉफ्ट मीन्स हंसती थी. एंड मीन्स ऑफ टैप टू लिटरिंग. स्टूडेंट्स, हियर द मीन ऑफ टैप टू लिटरिंग, टैट कि
लिटरिंग LITTERING. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ लिटरिंग दैट कि वो कूड़ा करकट को ना इधर उधर डाल देती थी. ओके, वो कचरा करती थी. हियर द मीनिंग ऑफ लिटरिंग दैट कचरा करना. ओके, तो सी ओनली आफ्टर, वह केवल हंसती थी. एंड दैट लिटरिंग, और क्या करती थी, इधर उधर कूड़ा डालती रहती थी, कूड़ा रखती रहती थी इधर उधर. देन वन डे, दैट मीन्स द वन डे मीन्स एक दिन, अम्मा बिकेम वेरी एंग्री. ओके, अम्मा बिकेम मीन्स हो गई, वेरी मीन्स बहुत, एंग्री मीन्स हियर मीनिंग ऑफ एंग्री दैट गुस्सा, क्रोधित. ओके, तब एक दिन उसकी जो अम्मा थी, मम्मी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई. सून ऑल दी स्टार्स विट स्टार्ट फॉलोइंग यू, सी सेड. ओके, सून मीन्स जल्दी, ऑल दी स्टार्स इट्स मीन कि ये सारा ट्रास है ना, ये जो सारा कचरा है ना, विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, ये तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा. फॉलो मीन्स टेंस होता है, द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग दैट पीछा करना या अनुसरण करना. ओके, यू मीन्स आपका, सी सेड उन्होंने कहा. ओके, तो एक दिन उसकी अम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा, उनकी अम्मा ने कहा, चीकू की अम्मा ने कहा, चीकू की मम्मी ने कहा कि देखना एक दिन ना ये सारा कचरा, ये सारा ट्रास तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा. ओके, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ये सारा कचरा आपका पीछा करना शुरू कर देगा. ओके, तो चीकू की अम्मा ने चीकू से कहा कि तुम इधर उधर कचरा जो फेंकती हो ना, तो एक दिन चीकू की अम्मी, जो अम्मा थी, वो डेली उससे समझाया करती थी इधर कचरा ना करो. और एक दिन क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि देखना जल्दी ये सारा ट्रास, ये सारा कचरा तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा. क्लियर? So students, we have read and explained summary of first, second and third stanzas, which is page number 52 of this chapter 7, A Cloud of Trust. And I hope you must have understood summary of first, second and third stanzas of this chapter 7, which I have explained you in our today's class. And we will read and explain summary of next stanzas of this chapter 7, A Cloud of Trust, in our next video. Okay. And since now we are going to read and note down hard words of this chapter 7, A Cloud of Trust, in our Fad English Literature notebook. So let's see hard words. Students, the name of this chapter 7 is A Cloud of Trust. I means a cloud means बादल, of means car, trust. Here the meaning of trust, that कचरा. Okay, junk या dirt. Okay, a cloud of trust, it's mean कचरे का एक बादल. Student, let's see hard words. Hard words means होते हैं कठिन शब्द. Okay, student, let's see first number hard word. Student, so first number hard word is unhappiest. UNHAPPIEST. Unhappiest means सबसे ज़्यादा दुखी. Okay, student, see what second number hard word is hanging. HANGING. Hanging means टंगा होना. Third number hard word is saving. SHAVINGS. Savings means छिलके. Okay. एंड 4 नंबर हार्ड वर्ड इज कलर या छीलन बोल सकते हैं सेविंग्स में. ओके, एंड 4 नंबर हार्ड वर्ड इज कलरफुल. COLOURFUL. कलरफुल मीन्स रंगीन. ओके, एंड 5th नंबर हार्ड वर्ड इज सराउंडेड. SURROUNDED. हियर द मीनिंग ऑफ सराउंडेड, घिरा हुआ. ओके, एंड 6th नंबर हार्ड वर्ड इज बजिंग. BUZZING. स्टैंड्स हियर द मीनिंग ऑफ बजिंग, दैट भिनभिनाना. ओके, एंड 7 नंबर हार्ड वर्ड इज लिसेंट. LISTENED. लिसेंट मीन्स सुनना. ओके, LISTENED, सुना. एंड 8 नंबर हार्ड वर्ड इज डस्टबिन. USTBIN. डस्टबिन मीन्स जिसमें हम कूड़ा डालते हैं ना. ओके, उसे बोलते हैं डस्टबिन. ओके, एंड 9 नंबर हार्ड वर्ड इज लिटरिंग. LITTERING. लिटरिंग. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ लिटरिंग, दैट कचरा करना. ओके, एंड सिंस 10 नंबर हार्ड वर्ड इज एवरीवेयर. इट्स मीन प्रत्येक जगह. EVERYWHERE. प्रत्येक जगह या हर जगह. 11 नंबर हार्ड वर्ड इज स्क्रीम्ड. SCREAMED. स्क्रीम्ड. एंड 12 नंबर हार्ड वर्ड इज थ्रोइंग. THROWING. इट्स मीन फेंकना. And 13 number hard word is twisted. TWISTED. Twisted, it's mean मुड़ी हुई. And 14 number hard word is completely. COMPLETELY. Students, here the meaning of completely, that पूरी तरह से. Completely means पूरी तरह से. And last 15 number hard word is Chiku. CHEEKOO. Chiku. Okay. And Chiku is the unhappiest girl in this story. Okay, story में Chiku एक unhappiest girl है. Okay. सबसे ज़्यादा दुखी लड़की है. So students, we have read and note down hard words of the chapter 7, A Cloud of Trust, in our Fad English Literature notebook, and I hope you must have understood all these hard words of the chapter 7. You have no problem in any hard words of the chapter 7. Okay, so students, today's your classwork is that note down these hard words of the chapter 7, A Cloud of Trust, in your Fad English Literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that read first, second and third stanzas of the chapter 7, A Cloud of Trust, and also try to find out the summary of first, second and third stanzas of the chapter 7. And students, I hope you have no problem for your homework, because students, I've explained a summary of first, second and third stanzas of the chapter 7. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Note down these hard words of the chapter 7, A Cloud of Trust, in your Fad English Literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.